ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا یا کسی اور نے؟ تاج محل کے اندر ممتاز بیگم کی قبر موجود ہے یا شیو کا مندر موجود ہے؟ یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا کر دیا گیا، اور اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک نئی مووی آ رہی ہے جس کا نام ہے دا تاج اسٹوری۔ 31 اکتوبر کو یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے، تاریخ طے کر دی گئی ہے، لیکن کل جب اس فلم کے اہم اداکار، اہم ایکٹر پریش راول نے اس کا موشن پوسٹر اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ریلیز کیا، ہنگامہ برپا ہو گیا، اس کو جوک بتایا گیا، اتنا زیادہ اعتراض ہوا کہ پریش راول کو اپنا یہ پوسٹر ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اس کے بعد ان کو صفائی دینی پڑی اور کہنا پڑا کہ اس مووی میں، اس فلم میں تاج محل کی تاریخ کو بتایا گیا ہے، تاج محل کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مذہبی نقطۂ نظر سے اس فلم میں بحث نہیں کی گئی ہے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شیو کا مندر ہے، لیکن سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ اور کتنا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کس طرح ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے، اس کی جڑوں کو بھی ذرا سمجھیے۔ دا تاج اسٹوری فلم کی جو شوٹنگ ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے چل رہی ہے۔ 3 سالوں کا عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود ابھی تک یہ فلم سامنے نہیں آئی ہے۔ 2023 میں تاج محل کی تاریخ پر، تاج محل کو کس نے بنایا، تاج محل کا ہندوؤں سے کیا رشتہ ہے، ان سب کو سامنے لانے کے لیے ایک فلم کا اسٹیج تیار کیا گیا، ایک بیک گراؤنڈ بنایا گیا، اور 2023 میں ہی اس کی شوٹنگ شروع ہوئی۔ 2024 میں بھی اس کی شوٹنگ ہوئی، اور 2025 کا 7-8 مہینہ گزر چکا ہے، ابھی تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی۔ 31 اکتوبر کو یہ فلم ریلیز ہو پائے گی یا نہیں، یہ کہنا بھی مشکل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ ایجنڈا یہ ہے کہ تاج محل کا اصل معمار شاہ جہاں کو قرار نہ دیا جائے۔ یہ جو تاریخی سچائی ہے کہ تاج محل کی تعمیر شاہ جہاں نے کی تھی، اپنی اہلیہ ممتاز بیگم کی یاد میں کیا تھا، اور یہاں سے ہندوؤں کا کوئی بھی کنیکشن نہیں جڑ پاتا ہے۔ ماضی میں کئی مرتبہ ایسی کوشش ہوئی کہ یہ تیجو مندر ہے، یا ہندوؤں نے بنوایا تھا، یا شیو کا مندر ہے، اور لوور کورٹ میں لوگوں نے پٹیشن تک دائر کی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ تک لوگ پہنچے تھے، لیکن لوور کورٹ اور الہ آباد ہائی کورٹ دونوں جگہ سے ججز نے پٹیشن فائل کرنے والوں کو پھٹکار لگائی اور کہا دور چلے جاؤ۔ یہ پوری دنیا میں تاریخی سچائی ہے کہ تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنایا تھا، اور اس کی تاریخ کو چھیڑا نہیں جا سکتا ہے، اس کی تاریخ میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تاج محل کے ساتھ کچھ ہوا تو دنیا بھر میں بھارت کی ذلت و رسوائی ہوگی، بدنامی ہوگی، اس لیے اس پر سنوائی نہیں ہوگی۔ لیکن اب بھی جو ہندوتوا گروپ کے علم بردار ہیں، جن کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کی ہر تاریخی عمارت کو، مسلم بادشاہوں کی بنائی گئی ہر عمارت کو مندر میں تبدیل کر دو، اور اس کا کریڈٹ جو انہیں جاتا ہے اپنے پاس لے لو، اس سے انہیں محروم کر دو۔ تاج محل کے بارے میں بھی ان کی پالیسی ابھی تک برقرار ہے، اور اب ایک فلم بنائی جا رہی ہے۔ اس فلم کا نام ہے دا تاج اسٹوری، اور اس فلم میں بتایا گیا، اس فلم کی کہانی یہ ہے کہ کورٹ روم ہوگا، ایک عدالت ہوگی، عدالت کا کورٹ روم ہوگا، وہاں ججز بیٹھیں گے، اور اس کے بعد مقدمہ پیش کیا جائے گا کہ مائی لو غلط ٹھہرایا جائے گا، اور ایک نئی تاریخ بنائی جائے گی تاکہ ان کا ایجنڈا ثابت ہو سکے۔ پریش راول کا فلمی دنیا میں، بالی ووڈ کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، کئی اہم فلمیں انہوں نے کی ہیں، مسلمان بھی لگاتار ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو پوسٹر ریلیز کیا اس کے الفاظ کو دیکھیے، لکھتے ہیں "What if everything you have been thought is a lie"، کہ ایسا کیا ہوگا اگر آپ تمام چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے، جو سچائی ہے اس کو چھپا دیا گیا اور اب انصاف ہوگا۔ آپ اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیجیے اس ٹویٹ کا، کہ اگر سب کچھ جو آپ کو پڑھایا گیا ہے جھوٹ ہو، سچائی صرف چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے، حقائق کو بے نقاب کیجیے۔ فلم دا تاج اسٹوری کے ساتھ 31 اکتوبر کو آپ کے قریبی سنیما گھروں میں یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے۔ آپ اس جملے کو دیکھیے کہ اگر سب کچھ جو آپ کو پڑھایا گیا ہے جھوٹ ہو، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تاج محل کے بارے میں جو تاریخ آپ کو بتائی گئی، جو اس کے معمار کے بارے میں بتائے گا، جو اس کی اسٹوری بتائے گی، وہ سب جھوٹ ہے، اور صرف بچنے کے لیے اس نے کوشچن مارک لگا دیا ہے۔ عام لوگوں کو کوشچن مارک کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، تو اس نے ایک طرح سے انڈائریکٹ میسج دے دیا کہ تاج محل کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا وہ جھوٹ ہے، تاریخی سچائی نہیں ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے، اور جو ہم فلم لے کر آ رہے ہیں وہی تاریخ تاج محل کی اصل تاریخ ہوگی۔ دا تاج اسٹوری جو فلم آ رہی ہے، اس کے ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں
तुषार अमरीश गोयल और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सौरभ एम पांडे और सीए सुरेश झा। जिन लोगों ने इस फिल्म में काम किया उसमें एक बड़ा नाम है परेश रावल का, जाकिर हुसैन का, अमृता खालोंकर का, या इसी तरह नमित दास का, साहेश वाग का। अब इस फिल्म के ज़रिए जो नया प्रोपेगेंडा किया जाएगा बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा शर्मनाक है। ये अलग बात है कि जब इस मोशन ग्राफिक पर एतराज़ हुआ, इसे डिलीट किया गया, वजाहत दी गई, वजाहत में पोस्टर दिखाया गया जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताजमहल की असल तारीख क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, उसे भी जान लीजिए। और आगे मैं ये भी बताऊंगा कि ताजमहल से भारत सरकार को कितना रेवेन्यू आता है और कोई भी दूसरा टूरिज्म प्लस इसके दूर दूर तक भी नज़दीक नहीं है। मुग़ल बादशाह शाहजहां जो बादशाह बने, शहनशाह बने 1628 में, और उसके 3 सालों बाद यानी 1631 में उनकी सबसे प्यारी अहलिया मुमताज़ बेगम की वफ़ात हो जाती है। बेपनाह मोहब्बत करते थे मुग़ल बादशाह शाहजहां उससे, इसलिए उनकी याद में उन्होंने एक मकबरा बनाने का फ़ैसला किया, एक मज़ार बनाने का फ़ैसला किया। और 1632 ईस्वी में ताजमहल की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ। ताजमहल की तामीर में 5 साल 10 साल नहीं लगे बल्कि 22 साल लग गए। 1653 में ताजमहल की तामीर मुकम्मल हुई और 1658 में मुग़ल बादशाह शाहजहां की वफ़ात भी हो जाती है। ताजमहल की तामीर में $32 मिलियन से ज़्यादा रुपए खर्च हुए। उस वक्त में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मज़दूरों ने दिन रात ताजमहल की तामीर के लिए काम किया। ताजमहल में संगे मरमर को लगाया गया, सबसे कीमती पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल को दरियाए जमुना के किनारे बनाया गया। ताजमहल के चारों तरफ वसी व अरीज़ जगह है, एक तरफ दरियाए जमुना है, बकिया खाली जगह है। ताजमहल के बिल्कुल बाजू में एक मस्जिद भी बनी हुई है। ताजमहल के सामने एक खूबसूरत बाग है जिसको 4 बाग कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत ये बागीचा है, रंग बिरंग के फूल लगे हुए हैं। ताज मीनार में 4 मीनार है और उसके बीच में एक मरकज़ी गुंबद है। 4 मीनार की एक और ख़ुसूसियत और ख़ूबी यह है, सुबह के वक्त इसका रंग गुलाबी होता है, दिन में दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है, और जब चांदनी रात होती है तो ताज महल सुनहरे कलर का दिखता है, चमकता है। एक ही पत्थर है। 400 साल से ज़्यादा इस इमारत की तामीर को हो गए हैं, लेकिन आज भी उसकी जो खुसूसियत है, उसकी जो खूबी है, वो किसी और इमारत में नहीं देखी जाती है। दुनिया में सिर्फ 7 इमारतों को अजायब में शुमार किया गया है, अजूबा इमारत उन्हें कहा जाता है, और उसमें से एक ताज महल भी है। ताज महल की कॉपी करने की पूरी दुनिया ने लगातार कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी नकल उतारने में, इसकी कॉपी करने में कामयाब नहीं हो सका। और ताज महल के बारे में पूरी दुनिया के राइटर, हिस्टोरियन का इत्तेफाक है कि ये मुमताज़ महल मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहां ने बनवाया था। इसके मंदिर होने का शोशा 1989 में पहली मरतबा छेड़ा गया, जब लगातार बाबरी मस्जिद के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बाबरी मस्जिद को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद को मुग़ल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़कर 1528 में बनाया था। उसी दौरान कुछ लोगों ने यह कहना भी शुरू कर दिया कि जो ताज महल है वहाँ पर भी कोई मंदिर है, मंदिर की जगह पर ताज महल की तामीर हो गई। लेकिन अभी तक उनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। और कई मरतबा ये मामला आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गया। अब दोबारा एक फिल्म इस मौजू पर लाई जा रही है। ताज महल एक ऐसी इमारत है जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी भारत सरकार को आता है। कल एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो भी ऐसी इमारतें हैं जो टूरिज्म हब है, जहां जाकर लोग उसे देखते हैं, जहां के लिए टिकट खरीदा जाता है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर ताज महल है। सबसे ज़्यादा पैसा और जब सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती है वो ताज महल से होती है। 2019 से 2024 तक जो 5 ईयर्स का फाइनेंशियल ईयर है उसमें ताज महल से आमदनी 297 करोड़ रुपए हुए हैं। सिर्फ 2024 में ताज महल से जो रेवेन्यू आया है उसका फिगर है 98 करोड़ रुपया। और सबसे ज़्यादा जो विजिटर्स ताज महल में ही आते हैं, लास्ट ईयर यानी 2024 में 80 मिलियन लोगों ने ताज महल का विजिट किया है, ताज महल को देखा है, और ये बहुत बड़ा फिगर है। और जो दूसरी इमारतें हैं इसके नज़दीक नहीं। अच्छा, ये बात भी जान लीजिए, बड़ी दिलचस्प है कि ताज महल के अलावा
जो दूसरी इमारतें हैं जहां टूरिज़्म के लिए लोग जाते हैं, वहां से जो आमदनी आती है, तो उसमें भी अंग्रेज़ों की कोई बनाई हुई इमारत नहीं है, या नरेंद्र मोदी की बनाई हुई इमारत नहीं, या कांग्रेस बीजेपी की बनाई हुई कोई इमारत नहीं, बल्कि वो भी मुस्लिम बादशाहों या मुग़ल बादशाहों की ही बनाई हुई इमारत है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ताजमहल से आता है, और ताजमहल के बाद अगर कोई इमारत है जिससे रेवेन्यू आता है तो उसमें कुतुब मीनार शामिल है, लाल किला शामिल है, या आगरा का लाल किला शामिल है, या फिर हुमायूं का मकबरा शामिल है। उसके अलावा कोई दूसरी इमारत दूर दूर तक भी नहीं है। 2024 में ताजमहल से 98 करोड़ रेवेन्यू आया, लाल किला और कुतुब मीनार से भी 18 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इसके अलावा कोई और दूसरी इमारत नहीं है जो उसके नज़दीक हो। तो मुस्लिम बादशाहों ने, मुग़ल बादशाहों ने जो इमारतें बनाई, हिंदुस्तान को जो उन्होंने सकाफ़ती वर्सा दिया, जो तारीख़ी वर्सा दिया, वो आज भी इंडिया को पैसे दे रहा है, इंडिया की हुकूमत को मजबूत कर रहा है, इंडिया की जीडीपी में अपना किरदार निभा रहा है। अब शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो मुग़ल बादशाहों को लुटेरा बोलते हैं, जो इनको बाहरी करार देते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को वो तोहफ़ा दिया, वो दौलत दी, जिसकी वजह से इंडिया को दुनिया भर में जाना जाता है। अगर एक सवाल आपसे किया जाए कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान किस वजह से है, भारत की शनाख्त किस वजह से है, तो जो पहली चीज़ और पहले नंबर पर जो चीज़ आएगी वो है ताजमहल। जैसे दुनिया के अलग अलग मुल्कों की एक अलग अलग शनाख्त है। अमेरिका को दुनिया में इस वजह से जाना जाता है कि वो सुपर पावर है, उसका जो इकोनॉमी का निज़ाम है, उसकी जो मिलिट्री ताकत है, वो पूरी दुनिया पर हावी है। इसी तरह कुछ और दूसरी जगहों के लिए पहचान है। इंडिया को सबसे ज़्यादा अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, या बाहर के विजिटर्स इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा जिस इमारत को देखने के लिए आते हैं, तो वो ताजमहल है। उसके अलावा कोई और इमारत नहीं है, क्योंकि ताजमहल यूनिक है। और ताजमहल की तारीख़ को कई मरतबा बदलने की कोशिश की गई, और अब ताजमहल की तारीख़ को बदलने के लिए, उसके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ये नई फ़िल्म आ रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह माजी में कई सारी फ़िल्में फ्लॉप हुई है, खा वो उदयपुर फाइल हो, द केरला स्टोरी हो, या बंगाल फाइल हो, उसी तरह द ताज स्टोरी भी फ्लॉप होगी। और इस ताज स्टोरी में जो अदाकार हैं, जो इसके राइटर्स और डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो सब संघी जहनियत रखने वाले हैं। उन सब की मंशा यही है, उन सब की हकीकत और उन सब की सच्चाई यही है कि सब हिंदुस्तान की तारीख़ को बदलना चाहते हैं, लेकिन इनके बदलने से तारीख़ नहीं बदल सकती है। इंडिया की किताब में लिखा जा सकता है कि ताजमहल शिव मंदिर है, लेकिन पूरी दुनिया में जो तारीख़ मौजूद है, वहाँ ताजमहल की तारीख़ को बदला नहीं जा सकता है। परेश रावल के बारे में अब तक लोग यही समझते रहे हैं, सुलझा हुआ जहन का एक्टर है, वो ठीक ठाक है, वो संघी जहनियत का नहीं है। लेकिन जब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने रिसर्च किया, उसके ट्विटर अकाउंट को मैंने देखा, तो मैं हैरान रह गया उसके ट्विटर अकाउंट को देख करके कि जिस तरह उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ पोस्ट कर रखी है, जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ ट्विटर पर शेयर होने वाली हर चीज़ को उसने कोट कर रखा है या उसको रीपोस्ट कर रखा है, उस पर उसने कमेंट कर रखा है, हैरान करने वाला है। कल मेरी टीम में से ही किसी ने, बल्कि सिराज नाम, उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी में क्यों नचनियों को, नाच गाना करने वालों को, या भोजपुरी फिल्मों के अदाकारों की, या इस तरह जिसका कोई समाज में स्टेटस नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उसको टिकट दिया जा रहा है, एमपी बनाया जा रहा है। और मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने यही कहा कि बीजेपी के पास अफराद नहीं है, बीजेपी के पास अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में इन नाच गाने वालों को, इन नचनियों को लाया जा रहा है, उन्हें एमएलए और एमपी बनाया जा रहा है। लेकिन परेश रावल को जब मैंने पढ़ा, जब मैंने उसे चेक किया, तो इस सवाल का जवाब मिल गया कि बीजेपी, आरएसएस देश की तारीख़ को बदलना चाहती है, मुग़लों की तारीख़ को बदलना चाहती है, हर बात का क्रेडिट ये लेना चाहते हैं, हर मस्जिद को, हर मकबरा को, हर तारीख़ी इमारत को मंदिर में तब्दील करने का एजेंडा है। और उसके लिए इन एक्टरों को, एक्ट्रेस को, नाच गाना करने वालों को सियासत में लाया जा रहा है, उन्हें एमएलए और एमपी बना दिया जाता है, उनको टिकट दे दिया जाता है ताकि वो फिर फिल्में बनाएं, वो तारीख़ को गलत तरीके से पेश करे, वो इंडिया के इतिहास को बदलने का काम करे। तो यूं ही इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, यूं ही इनको पार्लियामेंट में नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि इसके पीछे एजेंडा है इनसे काम लेना। इनको पहले लॉलीपॉप दिया जाता है, एमएलए और एमपी बना दिया जाता है, उसके बाद टिकट नहीं दिया जाता, फिर कहा जाता है कि हमने जो तुम्हें एमपी बनाया था उसके बदले में
तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। जैसे परेश रावल को 2014 में टिकट मिला, अहमदाबाद से MP बन गए, उसके बाद टिकट नहीं मिला और अब इनसे ये काम लिया जा रहा है। जब परेश रावल ने इस तरह का पोस्टर शेयर करना शुरू किया तो ट्विटर पर यही लिखा जा रहा है कि परेश रावल के लिए दिल में जो जगह थी, जो इज्जत थी, अब ख़त्म हो चुकी है। परेश रावल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटिया फिल्म में वो काम करेगा और ताजमहल की तारीख को बदलने का काम किया जाएगा। आप किस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, मिल्लत टाइम्स के पुराने व्यूवर्स हैं, तो आपसे गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, QR कोड भी स्क्रीन पर मौजूद है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहां हमारा प्लान मौजूद है 99 का, 299, 499। कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए ताकि मिल्लत टाइम्स मजबूत हो। मिल्लत टाइम्स का जो दूसरा काम है, मिल्लत टाइम्स की जो पूरी टीम है, उसका जो पूरा खर्च है वो आसानी से पूरा हो सके। अल्लाह हाफिज़।